So, good morning, dear students. I am Dr. Amit Alexander Charan, your science teacher. I am bringing the second part of chapter number 4, materials, metals, and non-metals. So, now we'll study about the chemical properties of metals and non-metals. And chemical properties are generally based on four aspects: reaction with oxygen, reaction with water, reaction with acid, and reaction with bases and displacement reactions. So first is reaction with oxygen. Generally most of the metals they combine with oxygen to form metal oxide, and when for example magnesium, when it is combined with oxygen, it forms a metal oxide known as magnesium oxide, MgO. So magnesium, when it is heated, it burns with the help of oxygen and gives a white light. जैसे आपने उसमें देखी होगी फुलझड़ी में कभी वाइट कलर की लाइट, तो वैसी अनार के उसमें देखी होगी, तो वाइट कलर की लाइट इज गिवन बाय ऑक्सीजन बिकॉज मैग्नीशियम इज हाईली यूज्ड इन द क्रैकर इंडस्ट्री to form magnesium oxide. Iron and copper, they also react with oxygen but slowly in the presence of moisture, and these metal oxide are basic in nature and they turn red litmus paper to blue. So it is a litmus paper test. litmus paper test में हम किसी भी लिक्विड में, जो मेटल ऑक्साइड का लिक्विड होता है उसमें हम पेपर डिप करते हैं, और अगर वो बेसिक इन नेचर है, उसका pH अगर बेसिक है, it turns the red litmus paper to blue, and if it is acidic it turns the blue litmus paper to red. So non-metals are examples such as carbon, sulfur and phosphorus, which also on heating they burn in the presence of oxygen and to form oxide. Like carbon, when it is burned it forms carbon dioxide. Sulfur, when it is burned in the presence of oxygen, it forms sulfur dioxide. So these non-metals oxide are also dissolved in water to form acidic oxide. Like carbon dioxide, when it is dissolved in water it forms carbonic acid, H2CO3. When sulfur dioxide, SO2, is dissolved in water, H2O, it forms H2SO3, sulfurous acid. Sulfuric acid is H2SO4. This is sulfurous acid. Okay. So the second chemical property is reaction with water. So most metals they react with water to produce metal oxide, hydroxide, right, or metal oxide and hydrogen gas. Like sodium, when it is rigorously and evenly dissolved in cold water, it forms sodium hydroxide, NaOH, and hydrogen is released, and heat is involved in this reaction. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है, और एंडोथर्मिक होते हैं जिसमें हीट इन्वॉल्व नहीं होती. कोल्ड जैसे रिएक्शंस रहते हैं. इसमें बीकर जो है वो गर्म हो जाता है, इसलिए ये हीट इन्वॉल्व हो रही है इसमें. एंड हाइड्रोजन, because of the heat, hydrogen can easily catch fire. So dry sodium in air also reacts. That is why sodium is always stored in kerosene. मैंने आपको बताया था पनीर जैसा दिखाई देता है, लाइट ग्रीनिश कलर का. इट इज़ ऑलवेज स्टोर्ड इन केरोसिन, क्योंकि अगर आप उसे खुला रखेंगे इट विल ऑलवेज रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, प्लस इट कैन रिएक्ट विद द मॉइस्चर इन द एयर. जो नमी है आपके वातावरण में, उससे भी सोडियम कैन रिएक्ट एंड इट कैन फॉर्म NaOH. सो मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर दे रिएक्ट विद water slowly, but non-metals do not react with water. So when the oxygen and water they combine with the metals, they form a brown and flaky substance. Flaky मतलब जैसे cornflakes होते हैं वैसा substance बनाता है. It is known as rust, junk, and this layer of rust they falls off and metals whose expose हो जाते हैं, और उसके साथ साथ आयरन बिकम वीक ड्यू टू द एज अ टाइम पासिस. लाइक अब एक रिएक्शन दे रखी जिसमें मैंने टिक मारा है, Fe इज आयरन प्लस ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, प्लस H2O वाटर. ये बारिश का पानी है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का पानी है. इट फॉर्म्स फेरस हाइड्रोक्साइड. सो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ रस्टिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज द रिएक्शन in scientific terms corrosion, which is a process of slow eating away of metal due to the attack of atmospheric gas and moisture.
So copper also attacked with can be attacked with water, carbon dioxide in the air, oxygen in the air to form copper hydroxide and copper carbonate. So that is why what we do, we generally paint these metals. हम पेंट कर देते हैं. कोई आयरन का खंबा है, कोई कॉपर का वायर्स है, हम उस पर कोई कोटिंग कर देंगे, रबर चढ़ा देंगे, प्लास्टिक चढ़ा देंगे. अदरवाइज वी पेंट इट. पेंटिंग से क्या होता है कि उसकी लाइफ बढ़ जाती है. जनरली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर इन द एटमॉस्फेयर जनरली डू नॉट रिएक्ट विद इट. सो नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड. एसिड्स में हम यहाँ दो एसिड्स की बात कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. So when zinc is reacted with sulfuric acid, that is H2SO4, it forms sulfate and hydrogen gas is released. ZnSO4 is formed and H2 is released. When aluminium is reacted with hydrochloric acid HCl से, so aluminium chloride AlCl3 is produced and hydrogen gas is evolved. So some metals the reaction is very fast, but for some it is slow. Like copper does not react with hydrochloric acid and even on heating, but it reacts with sulfuric acids. But if we say for non-metals, they generally do not react with acids. So एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी भी आपको करनी है, कॉपी में करनी है. ध्यान से सुनिए, आपको लिखना है कि कौन सा वाला मेटल मटीरियल जो है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड इज रिएक्शन विद बेसिस. कुछ ही जैसे एक अगर आपको पीएच पता हो तो 7 न्यूट्रल होती है, उससे एक तरफ एसिड होता है, एक तरफ बेस होता है, राइट. सो एसिड्स हमने डिस्कस कर लिया, बेस की बात है. वेरी फ्यू मेटल्स दे रिएक्ट विद strong bases like aluminium, zinc and lead. They react to form sodium hydroxide and a compound of it and hydrogen gas. But non-metals, they generally do not they react in different type of conditions. उसका बहुत रिएक्शन का जिक्र यहाँ पर अभी नहीं हुआ है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. In this reaction, a metal reacts with salt solution and displaces or replaces the metal present in it. It is explained on the basis of activity series of metals. Some metals are very active, some metals are less active. So होता क्या है, जो हायर है एक्टिविटी सीरीज में, जो मेटल ज़्यादा एक्टिव है वो कम एक्टिव वाले को रिप्लेस कर देता है. ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, नीचे देखिए ध्यान से. Fe आयरन का रिएक्शन हुआ कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ. इट फॉर्म्स आयरन सल्फेट FeSO4 विच इज ग्रीन इन कलर एंड कॉपर इज रिलीज्ड. सो व्हेन कॉपर इज रिएक्टेड विद FeSO4 कोई रिएक्शन नहीं होगा. बट इन द सेम टाइम जिंक का अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होगा तो ZnSO4 बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा and copper is released. But when copper is reacted with ZnSO4 तो कोई रिएक्शन नहीं होगा. इसका रीज़न ये है कि आयरन एंड जिंक दे आर प्लेस्ड इन हायर एक्टिविटी सीरीज देन कॉपर. आयरन और जिंक एक्टिविटी के मामले में कॉपर से ज़्यादा है, इसलिए कॉपर जिंक और आयरन के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर पाता है. ओके, सो नाउ वी कम टू द यूजेस ऑफ metals and non-metals. Uses of metals are they are used in making cooking utensils, in wires जैसे मैंने आपको बताया डक्टिलिटी वाली बात, एंड रूफ शीट्स, आपके घरों की एल्युमिनियम और आयरन की छतें बनती हैं. एंड गोल्ड एंड सिल्वर एंड टिन आर यूज टू मेक कॉइन्स. मरकरी जैसे मैंने बताया, पारा इट इज़ यूज इन थर्मामीटर. कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स सच एज कॉमन सॉल्ट या वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एवरीडे लाइफ में यूज़ होते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड सीमेंट में यूज़ होते हैं. क्रोमियम एंड निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ होते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक अलग प्रोसीजर है, कभी हम उसको आगे बताएंगे आपको. यह स्टेनलेस स्टील बनाने में यूज़ होते हैं.
मैग्नीशियम मैंने आपको बताया वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है फायरवर्क्स में, क्रैकर इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मैग्नीशियम। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, ग्रेफाइट जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, इट इज़ यूज्ड इन द पेंसिल्स, कोर ऑफ योर पेंसिल्स, जो ब्लैक कलर का आप लिखते हैं वो ग्रेफाइट होता है जनरली, लेड के साथ मिला हुआ। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोड्स, जो आपकी बैटरी होती हैं, कार बैटरी, मोटरसाइकिल बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, उसके इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज़ होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ग्लास एंड सीमेंट। सिलिकॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स जो आते हैं उसके सेल्स को बनाने में। रेड फॉस्फोरस इज़ यूज्ड इन मेकिंग जो मैच स्टिक्स होती हैं, माचिस की तीली, उसके ऊपर जो जलता है पोर्शन, मसाला जो होता है, दैट इज़ रेड फॉस्फोरस। क्रैकर्स में, एक्सप्लोजिव्स में यूज़ होता है। सो ये मैंने कर रखे हैं, देखिए, टेक द करेक्ट आंसर, आई हैव डन इट। आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स का रखा है, ट्रू फॉल्स का रखा है। डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको करना है। Thank you and have a nice day, students. God bless you all. I will send a PDF of both the parts.